السلام علیکم سامعین حضرات، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 8۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ پیروں کی کہانیاں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو اپنے سفر پر لے چلتا ہوں۔ واجدہ کو میں اس روز اس کے کوارٹر میں ملا تھا۔ ایک خوشی تو ملاقات کی تھی، یہ روحانی مسرت تھی۔ دوسری خوشی یہ کہ اس کا خامد آ گیا تھا اور میں چارپائی کے پیچھے چھپ گیا تھا اور اس کا خامد چلا گیا اور میں بال بال بچ گیا تھا۔ ایک خوشی اور بھی تھی، وہ یہ کہ میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی سے رات کے وقت اور بند کمرے میں تنہائی میں ملا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس پر میری محبت کی دیوانگی طاری تھی، لیکن میں وہاں سے پاک صاف نکل آیا تھا۔ یہ میری بہت بڑی فتح تھی۔ میں نے اپنے نفس کو منمانی نہیں کرنے دی تھی۔ واجدہ نے کہا تھا کہ میں 10 دنوں بعد اسے کوارٹر کے قریب والے جنگلے کے پاس ملوں۔ اس نے مجھے بتانا تھا کہ آصف کی رات کی اگلی ڈیوٹی کب ہوگی۔ ہم شاہ کی مار پٹائی کرائے تو ایک ہی روز بعد 10 دن پورے ہو گئے۔ میں شام سے کچھ دیر پہلے ٹہلتا ٹہلتا جنگلے کے قریب اس جگہ چلا گیا جہاں سے واجدہ کا کوارٹر نظر آتا تھا۔ اس نے بھی یقیناً گن گن کر دن گزارے تھے۔ وہ اپنے کوارٹر کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف آہستہ آہستہ چل پڑی۔ فاصلہ خاصا تھا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا اور میں پریشان ہو گیا۔ آصف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے کوارٹر کی طرف مڑا تو اسے واجدہ اسی طرف آتی دکھائی دی۔ میں بڑی تیزی سے وہاں سے کھسک آیا۔ آصف کمعقل تو نہیں تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا ہوگا کہ میں واجدہ سے ملنے کے لیے وہاں کھڑا تھا اور واجدہ مجھ سے ملنے جنگلے کی طرف آ رہی تھی۔ میں یہ سوچتا ہوں اپنی بارک میں آ گیا کہ یہ تو بہت برا ہوا۔ مجھے اپنا کوئی غم نہیں تھا اور مجھے آصف کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں صرف واجدہ کے لیے پریشان تھا۔ واجدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے آصف کو اپنے روب میں لے لیا ہے۔ اس نے آصف کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے چاہتی ہے۔ اس کے باوجود آصف نے واجدہ کو اپنے گھر میں آباد کر لیا تھا۔ میں حیران تھا کہ آصف نے واجدہ کی یہ باتیں کس طرح برداشت کر لی تھیں۔ ہمارے علاقے میں تو لوگ صرف شک کی بنا پر ہی قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن آصف تو واجدہ کا پروانہ بن گیا تھا۔ بے شک آصف نے واجدہ کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس نے میری اطاعت تو قبول نہیں کی تھی، وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وجہ تو صاف تھی کہ اس کی بیوی نے اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے چاہتی ہے، اور دوسری طرف وجہ یہ کہ وہ اونچی ذات کا آدمی تھا اور میری ذات اس سے 2-3 درجے کم تھی۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ قوموں اور ذاتوں کا زمانہ تھا۔ ہمارے علاقے میں راجے دوسری ذاتوں کے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ ان کے بولنے کا انداز یہ تھا کہ گردن اکڑا کر سر اونچا کرتے اور جس سے بات کرنی ہوتی اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے اور یوں بات کرتے جیسے یہ شخص انتہائی گھٹیا خاندان کا آدمی ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر مجھ پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آصف کے ساتھ میری ٹکر ہوگی اور یہ ٹکر معمولی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ہے مجھے آصف کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ آصف واجدہ کے ساتھ نہ جانے کیسے رد عمل اور غصے کا اظہار کرے۔ وہ آخر خامد تھا اور کوئی بزدل اور گھٹیا آدمی بھی نہیں تھا۔ اس کی برداشت کی کوئی حد ضرور تھی۔ اس نے واجدہ کا یہ اعتراف تو قبول کر لیا تھا کہ وہ اسے صرف خامد کی حیثیت سے قبول کرتی ہے، لیکن اس کی دلی محبت میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ یہ صورت قبول نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی سے ملتا۔ یہ تو میری سوچیں تھیں جو مجھے پریشانی کرتی جا رہی تھی۔ اس کا کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا۔ یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ آصف نے واجدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ سلوک اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہ خطرہ تھا کہ واجدہ اینٹ کا جو پتھر سے دینے والی لڑکی تھی۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ روسی کی رات آصف نے واجدہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تو ایسا ہی تھپڑ واجدہ نے آصف کے منہ پر مار دیا تھا، مگر اب صورت اور تھی۔ اب میں درمیان میں آ گیا تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ آصف واجدہ کو قتل ہی نہ کر دے۔ اگر یہ نہ کرے تو اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا۔ اس معاملے میں میرا رازدار حمید تھا۔ میں اس کے بارک میں گیا، اسے بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اس نے پہلے یہی بات کہی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، معاملہ بگڑ کر خاندانوں کی دشمنی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس صورت میں میرا خاندان آصف اور واجدہ کے خاندانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اور حمید ہر زاویے سے سوچتے رہے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ واجدہ سے کس طرح معلوم کیا جائے کہ آصف نے گھر جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میں نے بتایا کہ آصف کی سگنل بٹالین ہماری لائنوں کو بالکل قریب تھی۔ میں جب حمید کے ساتھ بات کر کے آیا تو شام رات میں بدل چکی تھی۔ میرے ایک ساتھی نے باہر سے آ کر بتایا کہ کوئی آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے لیکن اندر نہیں آتا۔ میں باہر گیا تو یہ دیکھ مجھے حیرت بھی ہوئی اور پریشانی بھی کہ وہ واجدہ کا خامد آصف تھا۔ میں آگے بیٹھو سے پاک سے ملا، لیکن اس نے میرے ساتھ ہاتھ نہ ملایا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ اندر آ جاؤ آصف بھائی، میں نے ہاتھ سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں ہاتھ ملانے نہیں آیا۔
उसने कुछ रूनत से कहा, और ना ही तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ। यह समझ लो कि तुमने मेरी बात पर तवज्जो न दी तो तुम 2 दिन के मेहमान हो गए। तुम मेरी जगह पर आए हो आसिफ। मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, यह मेरा घर है और तुम मेरे घर आए हो। माँ बहन की गाली दोगे तो वो भी सुन लूँगा। मैं गाली देने नहीं आया, उसने कहा। मैं तुम्हें 1-2 बातें कहने आया हूँ, इसके बाद देखूंगा कि तुम मेरे कहने पर अमल करते हो या नहीं। जरा मेरे साथ उधर चलो। मैं खाली हाथ था। मुझे कुछ पता नहीं था कि आसिफ का इरादा क्या था, और ना ही ये मालूम था कि उसकी जेब में चाकू या रिवाल्वर है या कुछ भी नहीं। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते हम परेड ग्राउंड में पहुंच गए। ये मैंने पहले ही बताया कि आसिफ एक गांव का रहने वाला था और मैं वाजिदा के कस्बे का, जिसे शहर कहा जाता था, बाशिंदा था। मैंने आसिफ को अपने शहर में आते जाते देखा था और उसने मुझे देखा था, और सिर्फ एक बार सलाम दुआ हुई थी। अब तो वाजिदा ने उसे बता दिया था कि इसकी ज़िंदगी में मेरा क्या मुकाम था। से अल्फाज यूँ कह लें कि मैं उसके रकीब और दुश्मन था। गौर से सुन लो खानी, आसिफ ने कहा। मैं जो बात आज कहने आया हूँ वो फिर कभी नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें अकल है तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बात कहने आया हूँ। पहले बात तो करो आसिफ भाई, मैंने कहा। मेरी बीवी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आसिफ ने कहा, और मैंने कुछ सोचकर उसकी बात कबूल कर ली है। सोच यह है कि हम ऊंची ज़ात के लोग हैं। एक बेवकूफ़ लड़की की बेवकूफ़ी से मैं नहीं चाहता कि 2 ऊंची ज़ातों के ख़ानदान बदनाम हो जाएं। तुम छोटी ज़ात के आदमी हो, इन बातों को तुम नहीं समझ सकोगे। ये मत भूलो कि मैं वाजिदा का खामिद हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी बीवी से मिलो। मैं तुम्हें भाइयों की तरह नसीहत करता हूँ कि अपनी हैसियत और अपनी ज़ात को पहचानो और कोशिश करो कि वाजिदा से दूर हो जाओ। मखमल में कंबल की टाँकी नहीं लग सकती। अगर नहीं मानोगे तो उसका नतीजा तुम्हारे माँ बाप के लिए बहुत बुरा होगा। एक काम करना आसिफ भाई, मैंने कहा, अगर सजा देनी तो मुझे देना, वालिदा पर हाथ ना उठाना और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करना। तुम उसके लगते क्या हो? आसिफ ने कहा। वो मेरी बीवी है, मैं जो सुख चाहूँगा उसके साथ करूँगा। मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसलिए करती है कि तुम उसके उस्ताद रहे हो, तुमने इसे तालीम दी है, लेकिन तुम उसके आशिक बन बैठे हो। तुम ये नसीहतें वाजिदा को क्यों नहीं करते? मैंने कहा। वो तुम्हारी बीवी है, क्या तुम उससे डरते हो? मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, उसने कहा। कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन किससे डरता है। मैं तुमसे दरख्वास्त नहीं कर रहा, ना मैं अर्ज करने आया हूँ। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि मेरे रास्ते में ना आओ। बात खत्म करो आसिफ, मैंने कहा। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। यही बात अगर वाजिदा मुझसे कह दे तो उसका हुक्म मान लूंगा। तुमने मुझे छोटी जात का आदमी कहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। फिर मेरा फैसला सुन लो, आसिफ ने मेरे कंधे पर हाथ मार के कहा। तुम जिंदा रहोगे या मैं? वो मेरा जवाब सुने बगैर चला गया। उसने मुझे जो चैलेंज दिया था ये खोखली धमकी नहीं थी, और ना ही उसने किसी पंजाबी फिल्म का मुकालमा बोला था। उसने अपना फैसला सुनाया था और मैं जानता था कि उस पर अमल भी करेगा। मैंने अपने आप को इस इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, शायद इसलिए कि मेरी नीयत साफ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आसिफ को रास्ते से हटाने के लिए वाजिदा को ये मशवरा दूंगा कि उसे किसी तरह का जहर दे दे, फिर हम शादी कर लेंगे। शादीशुदा औरतों की मोहब्बत कहानियों में ऐसे वाक़यात बहुत मिलते हैं कि औरत ने अपने आशना को साथ मिलाकर अपने खामिद को जहर दे दिया या किसी और तरीके से कत्ल करा दिया। मैं तो ये सोच भी रखा था कि वाजिदा से कहूँगा कि उसका खामिद अगर उसके सामने झुक गया है तो मुझे दिल से माफ़ कर दे और अपने अज़वाजी ज़िंदगी में कांटे न बखेरे। मैंने ये जो कहा है कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, ये बात यूँ बनी कि वो जंग का ज़माना था। हिंदुस्तान के कई पलटने और तोपखाने वगैरह महाजों पर चले गए थे और जो फौज मुल्क में रह गई थी उसकी ट्रेनिंग जारी थी। एक ट्रेनिंग तो ये होती थी कि किसी तरह की ब्रिगेड या किसी यूनिट का हुक्म मिलता कि वो जंगी हालत में फ़ौरन फला मुकाम तक पहुँचे। फिर देखा जाता था कि ये ब्रिगेड या यूनिट कितनी जल्दी बताए हुए मुकाम पर पहुँचती है और उस मुकाम तक पहुँचकर कितनी जल्दी मोर्चे तैयार करती है। ऐसा ही हुक्म हमारे ब्रिगेड को मिल गया। ब्रिगेड में आसिफ की सिग्नल बटालियन भी शामिल थी और मेरी बटालियन भी, लेकिन मैंने बटालियन के साथ नहीं जाना था, कुछ स्टाफ ने पीछे रहना होता था। अगले रोज़ ब्रिगेड चला गया। ब्रिगेड को पंजाब के पहाड़ी इलाके में पहुंचना था। ये एक एक्सरसाइज यानी जंगी मशक थी। ये मालूम नहीं था कि ब्रिगेड में वहाँ कितने दिन रहना था। हमीद भी चला गया था। अब मैं वाजिदा से मिलकर मालूम कर सकता था कि इसके घर में क्या हुआ था, लेकिन मैं रात को नहीं जा सकता था क्योंकि मैं जानता था कि जब कोई यूनिट एक्सरसाइज कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है तो फैमिली क्वार्टर पर रात को पहरा होता है। मैं वाजिदा को दिन के वक्त ही मिल सकता था, लेकिन पकड़े जाने का खतरा मौजूद था क्योंकि यूनिट के जो आदमी पीछे रह जाते थे वो क्वार्टर पर नजर रखते थे। मैं शाम 4 बजे से कुछ देर तक टहलता वाजिदा के क्वार्टर की तरफ चला गया। वाजिदा नजर आ गई। जिन औरतों के खामिद जंगी मशकिलें चले गए थे
ان کی غیر حاضری میں عورتیں فارغ تھیں، ان کا شغل گپ شپ لگانا ہی رہ گیا تھا۔ وہ 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں باہر بیٹھ جاتی تھی اور گپ شپ لگاتی تھی۔ واجدہ نے مجھے دیکھا تو اٹھ کر آ گئی۔ اس نے عورتوں کو میرے متعلق بتایا تھا کہ میں اس کا ماموزاد بھائی ہوں۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس روز آصف نے گھر جا کر کیا سلوک کیا تھا۔ سلوک کیا کرنا تھا؟ واجدہ نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے تو اس نے خاوندوں جیسا روب جھاڑا جو میں اس کا دل رکھنے کی سنتی رہی۔ آخر میں نے کہا کہ خانی جنگلے کے پاس کھڑا تھا، وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ تو سڑک پر جا رہا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو میں باہر کھڑی تھی، وہ جنگلے کے قریب آ گیا اور میں اس کی طرف چل پڑی۔ اگر میں اس تک پہنچ بھی جاتی تو ہم کون سی بدی کر لیتے؟ آصف نے کہا کہ یہ بدی نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی کی بیوی کسی غیر مرد سے ملے۔ میں نے اسے قسمیں کھا کر کہا کہ خانی تمہاری غیر حاضری میں میرے گھر آ جائے گا تو بھی ہم بدی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میں نے اس کے چہرے سے اندازہ کیا کہ میری باتیں سن کر صرف چپ ہوا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میرے بارے میں کچھ کہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، واجدہ نے جواب دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم نے چھوٹی ذات کے آدمی کا پیار میں دل بٹھا کر بہت برا کیا ہے، مجھے تو وہ قتل کی دھمکی دے آیا ہے، میں نے کہا، اور وہ ساری باتیں سنائی جو میرے اور آصف کے درمیان ہوئی تھی۔ پھر کہا، اگر اس نے تمہیں یہ باتیں نہیں سنائی تو اس سے نہ پوچھنا، اگر پوچھو گی تو ثبوت ہوگا کہ میری اور تمہاری ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے اپنا کوئی غم نہیں واجو، میں اس کا پورا مقابلہ کروں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ تم نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ وہ مجھے ملا تھا اور میری اس کی باتیں ہوئی تھی۔ میری ایک بات دل میں رکھ لو خانی، واجدہ نے کہا، اس شخص کے آگے جھکنا جانا، اس کے روب میں نہیں آنا۔ اگر موقع محل دیکھو تو اسے سرے سے صاف ہی کر دو، صرف خیال یہ رکھنا کہ پکڑے نہ جاؤ، یہ تم پر وار کرے گا ضرور، یہ ان کے خاندان کی روایت ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دو، اگر تم پکڑے گئے تو دیکھنا میں تمہیں کس طرح چھڑواتی ہوں۔ یہ تو جذباتی باتیں تھیں جو واجدہ کر رہی تھی۔ کسی کو قتل کرنا آسان نہیں ہوتا، دراصل یہ کہنا چاہیے تھا کہ قتل کرنا تو بہت ہی آسان کام ہوتا ہے۔ گولی مار دو، چھری یا چاقو چلا دو، دھوکے سے زہر پلا دو، کوئی اور طریقہ اختیار کر لو۔ دراصل مشکل کام قتل کو ہضم کرنا اور اپنے اس جرم کو چھپائے رکھنا ہے، یہ اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ جہاں تک آصف کا معاملہ تھا، اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ ہمیں خونی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اور اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ مجھے قتل کرتا ہے یا میں موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ رات کو آؤ گے؟ واجدہ نے پوچھا۔ نہیں واجو، میں نے کہا، تمہیں شاید معلوم نہیں، جب بٹالین باہر چلی جاتی ہے تو فیملی کوارٹروں پر 2 سنتریوں کا پہرا ہوتا ہے جو 3-3 گھنٹے بعد بدلتے ہیں اور کوارٹروں کے آگے پیچھے گشت کرتے ہیں۔ پھر نہ آنا، واجدہ نے کہا، اللہ ملائے گا۔ 5ویں یا 6 دن برگیڈ واپس آ گیا۔ اس دوران واجدہ کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوئی، یہ بھی جنگلی کی ملاقات تھی۔ 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک سرکاری حکم نے مجھے اور واجدہ میں لمبی جدائی ڈال دی۔ حکم یہ تھا کہ ہماری پلٹن فوراً بنو پہنچے۔ بنو شمال مغربی سرحدی صوبے کی ایک مشہور چھاؤنی ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں بنو چھاؤنی کو بہت اہمیت حاصل تھی کیونکہ یہ قبائلی علاقے میں واقع تھی۔ یہ وزیرستان کا علاقہ ہے۔ میں نے اس قبائلی علاقے کے پٹھانوں کی بہادری اور جذبہ حب الوطنی کے بہت سے قصے سنے تھے۔ میرے قصبے میں 2 ریٹائرڈ صوبے دار اور 3 ریٹائرڈ جمعدار ہوا کرتے تھے۔ پاک آرمی میں جمعدار کو نائب صوبے دار کہتے ہیں۔ یہ 5 فرنٹیئر کے قبائل میں خاصا عرصہ رہے تھے اور قبائلوں کے خلاف لڑے تھے۔ وہ قبائلوں کی لڑائی کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں اپنے بٹالین کے ساتھ بنو چھاؤنی پہنچا تو وہاں کے پہاڑ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میں کچھ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے دل میں ایک مدت سے خواہش پرورش پاتی رہی کہ یہ علاقے دیکھوں۔ میں نے مری کے پہاڑ دیکھے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، دیودار، چیل اور سفیدے کے درختوں سے ڈھکے ہوئے۔ یہ سرسبز پہاڑ دکھی دلوں کو مسرور، مخمور اور تر و تازہ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بنو کے پہاڑ بلکہ وزیرستان کے پہاڑ بالکل ننگے ہیں۔ ان پر گھاس کی ایک ہری پتی بھی نظر نہیں آتی۔ گرمیوں میں ان میں غیر مرے شعلے اٹھنے لگتے ہیں، لیکن یہ مجھے مری اور کشمیر کے پہاڑوں جیسے اچھے لگے۔ آپ میری کہانی سننے کے لیے بےتاب ہوں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنا دوں تو آپ میری کہانی کو زیادہ دلچسپ پائیں گے۔ ہماری آج کی نسل جب اپنے قبائلی علاقے کا نام سنتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہیروین، سمگلنگ، اغوا برائے تاوان، غیر قانونی اسلحہ کی خرید و فروخت۔ فرنٹیئر کے قبائلی علاقے کو علاقہ غیر کہتے ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں بھی اسے علاقہ غیر ہی کہتے تھے، لیکن اس دور میں اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ علاقہ انگریزوں کے لیے غیر ہے اور یہ پٹھانوں کا یعنی مسلمانوں کا آزاد علاقہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمان اسے فخر سے علاقہ غیر کہا کرتے تھے۔ ان میں جذبہ حریت بیدار ہو جاتا تھا۔ آج بھی اس علاقے کو علاقہ غیر ہی کہتے ہیں، مگر کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے ناپسندیدگی کا گھنونا سا تعصب پیدا ہوتا ہے۔ اب علاقہ غیر کے ساتھ جذبہ نہیں، جرم وابستہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں جو کاریں اور موٹر سائیکل چوری ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر علاقہ غیر میں چلے جاتے ہیں۔ قاتل اور ڈاکو علاقہ غیر میں پرپوش ہو جاتے ہیں۔ علاقہ غیر سے بھی روایت آتی ہے جس نے
पाकिस्तान को अक़वाम आलम में ज़लील और रुस्वा कर दिया है। इलाका गैर से क्लाशनकोफ और रिवाल्वर आते हैं। अंग्रेज़ों के दौर में हिंदुस्तान का कोई हुर्रियत पसंद इलाका गैर में चला जाता था और इसे सिर्फ पनाही नहीं मिलती थी बल्कि कबायली पठान उसे सर आंखों पर बिठाते थे। आज पाकिस्तान के मफरूम मुजरिम इलाका गैर में जाते हैं और उन्हें वहाँ पनाह मिलती है। ये वो खित्ता अर्ज है जहाँ सैयद अहमद शहीद अपने मुजाहिदीन के लश्कर को लेकर गए और सिखों के खिलाफ लड़े। पठानों ने अपने खून से हुर्रियत की तारीख लिखी है। कबायली पठान पूरे 100 साल अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और अपने इलाके के 1 इंच पर अंग्रेज़ों का कब्जा न होने दिया। अंग्रेज़ों ने कहीं कहीं छोटी बड़ी फौजी पोस्टें बना ली थी, लेकिन इनके बाहर अंग्रेज़ का कानून मफलूज हो जाता था और बाहर इनके मौत के सिवा कुछ ना था। कबायली पठानों ने 14 अगस्त 1947 के मुकद्दस दिन अपनी 100 साला जंग की फायरबंदी की। कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने तमाम कबायली इलाकों की फौजी पोस्टें खाली कर दी। वज़ीरिस्तान की आखिरी छोनी रज़मक से भी फौज निकाल ली। कबायली पठान पाकिस्तानी कहलाने लगे, मगर कायद आज़म के इंतकाल के बाद जब पाकिस्तान इक़्तिदार के पुजारियों, जागीरदारों, वडेरों और कारखानादारों के कब्जे में आ गया तो ना किसी को कबायली पठान याद रहे, ना ही ज़रूरत महसूस की कि इनके पसमानदा और नज़रअंदाज किए हुए इलाके को तरक्की देनी है। इसका नतीजा ये सामने आया कि कबायली पठान पाकिस्तान से दूर होते गए और कबायली इलाके लाकानूनियत, हिरन फरोशी, स्मगलिंग और जराइम का गढ़ बन गए। कहने को बहुत कुछ है, कभी तो जी में आती है कि इसी गयूर और हुर्रियत पसंद कबायली इलाके की बातें लिखता जाऊं। अंग्रेज़ों ने इस इलाके में कबायलियों से बहुत मार खाई है। कबायली इलाके के गिद्धों, गीदड़ों, भेड़ियों और कुत्तों ने ब्रिटिश आर्मी और अंग्रेज़ों की इंडियन आर्मी के हज़ारों फौजियों की लाशें खाई हैं और इनकी हड्डियां सरहद की खाक में मिलकर खाक हो गई हैं। मैंने लाशें खाने वाली बात वैसे ही जज्बाती अंदाज में नहीं लिखी, ये हकीकत है और मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखे हैं। कबायलियों की तरफ से सिर्फ एक गोली चलती थी, इसके जवाब में इधर से मशीन गनों और राइफलों के मुंह खुल जाते थे। आप अपने इलाके में राइफल या बंदूकें गोली चलाएं तो चिड़िया से चील तक डरकर उड़ जाएंगी, कोई गिद्ध भी नहीं ठहरेगा। लेकिन मैंने कबायली इलाके में देखा था कि जो ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती थी, गिद्धों के गोल फिजा में मंडलाने लगते थे, उनमें चीलें भी होती थी। ये मालूम था कि जब गोलियां चलती हैं तो खाने को मिलता है। लाशें फौजियों की होती थीं। पठान एक गोली फायर करके एक फौजी लेता और पहाड़ी पर इधर उधर हो जाता। कबायली पठान बेहतरीन गोरीले और स्नाइपर थे। वो फौजियों की तरह अंधाधुंध फायर नहीं करते थे। वो एक गोली उस वक्त चलाते थे जब इन्हें यकीन होता था कि गोली ज़ाया नहीं जाएगी। इनके पास फौज की तरह फूंकने के लिए एमुनेशन नहीं होता था। अमूमन ये होता था कि कबायली फौजी की लाश उठाने नहीं देते थे। लाश के करीब जो जाता वो स्नाइपर पठान की गोली का निशाना बन जाता था। अंग्रेज़ों का हुक्म था कि अपने साथी की लाश करीब है और अपने आप को महफूज रखकर उठाई जा सकती है तो उठाई जाए, वरना इसे उठाने का खतरा मोल न लिया जाए। इस हुक्म से ये रिवाज हो गया था कि अपने साथियों की लाशें पड़ी रहने दो। अंग्रेज़ों का अपना रिवाज ये था कि वो अपने अफसर की लाश हर कीमत पर ले लेते थे। झड़प के बाद जब फौज वापस चली जाती थी तो पठान सबसे पहले ये देखते थे कि इनका कोई अपना साथी शहीद हो गया है तो इसकी लाश उठा लेते थे। फिर वो किसी फौजी की लाश या लाशें ढूंढते थे। सिपाहियों वगैरह की लाशों से वो राइफल, एमुनेशन और उनकी जेबों से जो कुछ बरामद हो ले लेते थे। अगर किसी अंग्रेज अफसर की लाश मिलती तो उसे उठा ले जाते। कबायलियों और अंग्रेजों के दरमियान राब्ते के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। वो कबायलियों की किसी जिम्मेदार आदमी से राब्ता कायम करता और लाश की वापसी की बातचीत करता। पठान लाश का तावान बताते थे, कुछ सौदाबाजी होती थी और तावान तय हो जाता, जो पठानों को कोई सरबरा मलिक नकद वसूल करके लाश पॉलिटिकल एजेंट के हवाले कर देता था। पठान अंग्रेज अफसरों की लाशें जिस तरह वसूल वापस करते थे, इसकी सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूँ। 8 पंजाब रेजिमेंट का एक अंग्रेज अफसर मेजर फॉकन्स रजमक से थोड़ी दूर मारा गया और इसकी लाश पठान ले गए। 2000 रुपये में सौदा तय हुआ। पठानों ने लाश दे दी, लेकिन लाश की हालत ये थी कि पठानों ने इसका पेट चाक करके अंदरूनी अज़ा, शिकम, अंतड़ियां, मैदा, दिल जिगर वगैरह निकाल कर फेंक दिए और पेट में पत्थर भरकर पेट इस तरह सी दिया था जिस तरह बोरी का मुंह सूबे या सूतली से सिया जाता है। ये ज़हन में रखें कि उस वक्त का 2000 आज के 2 लाख के बराबर था। पठान सिर्फ मुसलमान फौजियों की लाशों का एहतराम करते थे, गैर मुस्लिम की लाशों के साथ तो बहुत ही तौहीन में सलूक करते थे। मैं पठानों के जिहाद की पूरी तारीख नहीं लिख रहा। मेरी आबितिया ज़िंदगी का सफ़रनामा पढ़ने वालों में वो से ख़वातीन हज़रात मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम और इल्म वाले होंगे। मैं तो सिर्फ 10 माथे पढ़ा हुआ हूँ। तारीख की थोड़ी सी सूझबूझ रखता हूँ। उस दौर की मुकम्मल तारीख आप खुद पढ़ लें, जब तहरीक मुजाहिदीन के बानी सैयद अहमद शहीद ने सुबह सरहद को सिखों के खिलाफ मैदान जंग बनाया। अंग्रेज सिखों की पुष्पनाही कर रहे थे। हिंदुस्तान में मुगल बादशाही का सूरज ग्रूप हो चुका था। सैयद अहमद शहीद के जिहाद का मकसद यह था कि हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराता रहे और हिंदुस्तान इस्लामी सल्तनत ही रहे। सैयद अहमद शहीद बहुत सी फतूहात हासिल करके बालाकोट पहुंचे तो अपने इन 4-5 साथियों के साथ जिनका जानशीन बनना था शहीद हो गए। पूरी की पूरी हाईकमान शहीद हो गई। मुजाहिदीन का लश्कर बददिल होकर बिखर गया
और तहरीक मुजाहिदीन दम तोड़ गई। सिख मुजाहिदीन के हाथों बहुत नुकसान उठा चुके थे। अंग्रेजों ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया और हिंदुस्तान पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने लगे। हिंदुस्तान में तो कई वाक़यात हुए। सरहद में यूबा के पठानों ने अपने पहाड़ी इलाके को मोर्चा बना लिया। हर घर मोर्चा बन गया। पहले पहले पिछली सदी के वस्त में पठान तलवारों और खंजरों से लड़े, फिर इनके पास तोड़ेदार राइफलें आ गईं जो उन्होंने फौज से छीनी थी। राइफलें आई तो राइफलें बनाने वाले कारीगर भी आ गए। फिर यूबा के फौज के पास 303 राइफल आती तो ये पठानों के पास भी आ गई। इन्हें मशीन गन ना मिली, ना उन्होंने बनाने की कोशिश की। इब्तदा में पठान हजूम की सूरत में लड़ते थे। वो हल्ला बोलने के अंदाज में हमला करते थे, लेकिन मोर्चा बंद फौज राइफलों और मशीन गनों से इनका बहुत नुकसान करती थी। आहिस्ता आहिस्ता पठानों ने लड़ने के अंदाज बदल दिए और वो गुरीला तरीका जंग पर आ गए। ये तरीका कामयाब रहा। उन्होंने छोने के अंदर जाकर शब खून मारे और असला खानों से राइफलें और एमुनेशन उठा ले गए। वो फौजी कन्वॉयों पर भी हमला करते थे। कबायली पठानों की दास्तान शुजात ऐसी बलबला अंगेज और ईमान अफरोज है कि सुनाते चले जाओ और कहीं ख़त्म न होने में आए। अंग्रेज जर्नलों और बकाया निगारों ने इन पर किताबें लिखी हैं। उन्होंने दुश्मन होते हुए पठानों की हुब्बुल वतनी को खराज तहसीन पेश किया है। मेरा ख्याल है कि अब मैं अपनी कहानी पर आ जाऊं। इसी से आप पर कबायली इलाके के असरार और रमूज़ मालूम होते जाएंगे। मैं कबायली पठानों के मुतल्लिक इसलिए ज़्यादा बातें सुना सकता हूँ कि मैं इनका कैदी रह चुका हूँ। यही वो वाक़या है जो मैं आपको सुनाना है। मेरी बटालियन बन्नू पहुंची तो मैंने देखा कि इतने बड़े शहर उतने बड़े छोने के इर्द गिर्द कमोबेश 10 फीट ऊंचा आहनी जंगला था जो डबल था, यानी 2 जंगले थे। दोनों के दरमियान 6-7 फीट फासला था। इसमें खारदार तारों के गुच्छे फेंके हुए थे। बाही वाले जंगले पर खारदार तार चढ़ाया हुआ यूं था जैसे दीवार पर बेल चढ़ी हुई होती है। बाहर से कोई आदमी जंगला फांद कर अंदर नहीं आ सकता था। यह हिफाजती इंतजाम शहर के चारों तरफ किया गया था। इसमें 4 या 5 गेट थे जो जंगलानुमा फाटक थे। दिन के वक्त खुले रहते और सूरज गुरूब होते ही बंद हो जाते थे। हर दरवाजे पर पूरी गार्ड पहरा पर होती थी। बन्नू अंग्रेजों की अमलदारी में था, लेकिन जंगले के बाहर अंग्रेज का कानून नहीं चलता था। बाहर इलाका गैर था। बन्नू के इर्द गिर्द इस कदर मजबूत हिफाजती इंतजाम की वजह यह थी कि इस शहर में तजारती मंडी थी और तजारत हिंदुओं के हाथों में थी। कबायली पठानों ने 3-4 बार इस शहर पर हमला किया और मंडी से कपड़ों के बेशुमार थान, अनाज और जरूरत की दीगर अशिया उठाकर ले गए थे। उन्होंने रात को अंदर आने का क्या तरीका इख्तियार किया और इतना सामान कैसे ले गए, ये अलग दास्तान है। बन्नू में हमारी बटालियन को 2 महीने हो गए थे। एक रोज अचानक हुक्म मिला कि पूरा ब्रिगेड लतंबर जा रहा है। लतंबर बन्नू से 15-16 मील दूर एक जगह है। आजकल शायद ये जगह कस्बा या बड़ा गांव बन गई हो। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त लतंबर छोटा सा एक गांव था। बन्नू का ब्रिगेड जिसमें मेरी बटालियन भी शामिल थी लतंबर पहुंच गया और एक उसी और इस मैदान में खेमे नस्ब कर दिए गए। देखते ही देखते वहाँ खेमों की बस्ती आबाद हो गई। मैं पहले बटालियन हेडक्वार्टर में होता था, फिर मैं एक कंपनी में भेज दिया गया। यह राइफल कंपनी थी। कबायली पठानों के खिलाफ ये एक जवाबी जंगी कार्रवाई थी। ऐसी जंगी कार्रवाइयाँ होती ही रहती थी। ये पहली जंगी कार्रवाई थी जिसमें मैं शरीक हुआ था। पठान बड़ा जबरदस्त वार कर गए थे। इस जगह राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन कुछ अरसे के लिए रखी गई थी। इस बटालियन ने करीबी पहाड़ों पर पोस्टें बनाई हुई थी जिनमें थोड़ी थोड़ी नफरी रहती थी। एक पोस्ट कैंप से तकरीबन 4 मील दूर एक टेकरी पर थी। इस इलाके से पक्की सड़क गुजरती थी जो कोहाट को बन्नू से मिलाती थी। इस पर कोई ट्रैफिक नहीं होती थी। ये इलाका खैर था। हफ्ते में 2 बार इस सड़क से फौजी कानवाय गुजरता था जिसकी हिफाजत के सड़क के दाएं बाएं पहाड़ों पर फौज फैला दी जाती थी। बाकी दिन सड़क बिल्कुल वीरान और सुनसान रहती थी। ये इलाका दरअसल मैदान जंग था। कोई शहरी अकेला दुकेला सफर कर ही नहीं सकता था। एक रोज राजपूताना राइफल्स की इस पोस्ट की बदली हुई थी। इसका मतलब यह है कि इस पोस्ट से जो जवान ड्यूटी पर थे इनका एक हफ्ता पूरा हो गया था। इनकी जगह दूसरे जवान जा रहे थे। 4 मील का फासला तो इन्फेंट्री के जवान पैदल तय किया करते थे, लेकिन जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और इन्फेंट्री को मैकेनाइज कर दिया गया था, यानी हर बटालियन को थोड़े से ट्रक भी दे दिए गए थे। राजपूताना राइफल्स के इन जवानों की नफरी 17 थी जो पोस्ट पर जा रहे थे। उनमें एक हवालदार और 2 लास नाइक और बाकी 14 सिपाही थे। ये सब ट्रक पर जा रहे थे। ट्रक पर तरपाल नहीं था। कैंप से 2 मील दूर गए होंगे कि ट्रक कैंपोलों की नजरों से ओझल हो चुका था, क्योंकि वो इलाका पहाड़ी था, मोड़ ज्यादा थे। तकरीबन 3 मील आगे गए तो ऊंची पहाड़ियां शुरू हो गई। वहां 90 दर्जे का एक मोड़ था। इस मोड़ के साथ जरा आगे सड़क पर छोटी सी एक पुली थी। इसके नीचे एक छोटा सा खुश्क नाला गुजरता था। मैंने बाद में पुली देखी थी, ज्यादा ऊंची नहीं थी। जब ट्रक इस पुली के करीब आया तो दाएं तरफ से गोली आई जो ड्राइवर की खोपड़ी में से गुजर गई। हवालदार अगली सीट पर बैठा हुआ था। एक गोली सामने से उसकी शाहरग में लगी और गर्दन के पीछे से निकल गई। दोनों गोलियां करीब से फायर की गई थी। ड्राइवर तो फौरन हलाक हो गया, चूंकि गोली उसके दिमाग में से गुजर गई थी। ट्रक सड़क के बाईं तरफ हो गया। आगे पथरीली जगह और एक टेकरी थी। इस टेकरी ने ट्रक को रोक लिया। ट्रक में जो जवान बैठे हुए थे
वो गाड़ी का रुख मोड़ने और फिर टेकरी के साथ टकराने से एक दूसरे पर लुढ़क गए। इससे पहले कि वो संभलते, बहुत से पठान जो यकीनन पुली के नीचे छुपे हुए थे ट्रक में कूद आए और खंजरों से इन जवानों को खत्म कर दिया। खंजर जनी में कबायली पठान खास मुहारत रखते थे। पठान औरतें भी इसी मुहारत से खंजर चलाती थी। वो जानते थे कि आदमी को फौरन खत्म करने के लिए खंजर कहाँ और कितनी बार मारा जाता है। इस ट्रक को घात लगाकर रोका गया था। पठानों ने मालूम कर लिया होगा कि इस पोस्ट की नफरी की बदली किस दिन और किस वक्त होगी। वक्त बड़ा खतरनाक था। जब ट्रक पर हमला हुआ तो उस वक्त सूरज ग्रूब हो गया था। एक हुक्म था कि सूरज ग्रूब होने के बाद कैंप से या छोने से किसी की मदद के लिए कोई नफरी न भेजी जाए। जिस पोस्ट पर ये लोग जा रहे थे वो जरा ही आगे एक ऊंची टेकरी पर थी। 2 गोलियां फायर होने से पोस्ट अलर्ट हो गई थी, लेकिन पोस्ट वालों को यह मालूम ना था कि इसकी बदली के लिए आने वाली नफरी नीचे कट गई है। यहां मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि पठानों को मालूम हो गया होगा कि आज फलां वक्त पोस्ट की नफरी की बदली के लिए जवान आ रहे हैं। ये पठानों की जासूसी का एक खुफिया इंतजाम था। कैंप में और छोने में भी बाहर से पठान मुख्तलिफ काम करने के लाया करते थे। इन्हें सरकारी इस्लामी कुली का करते थे। उनमें बास कबायली होते थे जो बड़ी खूबी से फौज की नकल हरकत की जासूसी करते थे। कबायलियों की जासूसी का दूसरा जरिया फौज के मुसलमान जवान थे। मुसलमान सिपाही से लेकर मुसलमान सूबेदार तक कबायली पठानों के हामी थे। जब कभी ब्रिगेड ने किसी यूनिट में बाहर जाना होता तो मुसलमानी कुलियों को यह खबर कर दिया करते थे। ऐसा भी होता था कि कहीं कबायलियों के साथ आमने सामने फायरिंग होती थी तो मुसलमान फौजी अपने राइफलों मशीन गनों की नालियां जरा सी ऊंची रखते थे ताकि गोलियां पठानों के ऊपर से गुजर जाएं। उस जमाने में फौजी पगड़ियां बांधते थे जो खाकी रंग की होती थी। मुसलमानों की निशानी ये थी कि उनकी पगड़ियों के शिमले होते थे। कबायली पठान शिमले वाली पगड़ी पर कभी फायर नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेज बड़ी चालाक कौम थी। वो मुसलमानों को बाज खास किस्म की सूरत हाल में हिंदुओं और सिखों के साथ मिला देते थे। इस तरह बाजूकात मुसलमान भी पठानों की गोलियों से मारे जाते थे। मैं उस ट्रक की बात कर रहा हूँ जिस पर हमला हुआ था। 17 जवानों में सिर्फ 2 जिंदा रहे। वो भी इस तरह के अपने साथियों के नीचे आ गए थे। अंधेरा भी हो गया था। पठान जल्दी में भी थे। उन्होंने तमाम राइफल एमुनेशन इकट्ठा किया, सबकी पगड़ी उतारकर इकट्ठी कर ली और जो हाथ लगा ले गए। उनकी ज्यादातर दिलचस्पी राइफलों और एमुनेशन के साथ थी। एक तो एमुनेशन था जो हर जवान के साथ था। इसके अलावा एमुनेशन के 4-5 बक्स भरे हुए थे। ये जो 2 सिपाही जिंदा रह गए थे उनमें एक जख्मी था। उसके कंधे पर खंजर लगा था और दूसरा बिल्कुल ठीक ठाक था। उन्होंने जब देखा कि पठान चले गए हैं और हर तरफ खामोशी हो गई है तो वहां से निकले, दौड़ते कांपते चल पड़े। आखिर वो कैंप में पहुंच गए और इत्तला दी कि सारी नफरी मारी गई है। हुक्म यह था कि रात को कोई कैंप से बाहर न निकले, लेकिन इस बटालियन का अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कोई बड़ा ही दिलेर आदमी था। उसने 2 राइफल कंपनियां ली और खुद उनके साथ गया। यह सारी फोर्स पैदल गई थी। कमांडिंग ऑफिसर ने दोनों कंपनियों को हर तरफ इर्द गिर्द पहाड़ों पर फैला दिया और अपने साथ जरूरत की नफरी रखी, जिससे उसने ट्रक को धक्का लगवाकर सड़क पर किया। ड्राइवर और हवालदार की लाशों को ट्रक में डाला। ट्रक को स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। इस तरह लाशों से भरा ट्रक कैंप में ले आए और कंपनियां वापस आ गईं। ये 2 जो सिपाही जिंदा बच रहे थे उन्हें हमले का पूरा वाकया सुनाया। उन्हें यह भी बताया कि हमलावर पठानों में औरतें भी थीं। उन्होंने इन औरतों को देखा तो नहीं था, इनकी आवाजें सुनी थी। कबायली इलाके में ऐसे ही कई और वाकयात हुए थे जिनमें पठान औरतें भी शामिल थी। इस इलाके में पठानों ने एक और पोस्ट पर शबखून मारा था। वो कोई असला बारूद तो नहीं ले जा सके, लेकिन जानी नुकसान कर गए थे। जब किसी इलाके में इस किस्म के 2-3 वाकयात हो जाते थे तो अंग्रेज इस इलाके पर फौजकशी करते थे, जिसे ताजीरी मुहिम कहा जाता था। ये एक बड़ी जालिमाना कार्रवाई होती थी। फौज को सारे इलाके में फैला दिया जाता और जो गांव रास्ते में आता इसे तबाह कर दिया जाता था। पठानों को पहले पता चल जाता था, इसलिए वो गांव खाली कर जाते थे। इनके घरों में कोई फर्नीचर और ज्यादा माल असबाब तो होता नहीं था। इनके बीवी बच्चे होते थे या माल मवेशी और बकरियां। इन्हें साथ लेकर वो इधर उधर हो जाते थे। वो फौज के सामने जा रहे होते थे, लेकिन हुक्म यह था कि किसी बूढ़े और बच्चे को और किसी औरत को गिरफ्तार नहीं करना, ना ही इन्हें किसी तरीके से तंग करना है। अंग्रेज जानते थे कि एक पठान औरत पर हाथ उठाया गया तो पठान एक पूरी छावनी पर हमला करके इंतकाम लेंगे। फौज के हुक्म ताकि किसी गांव को सलामत न रहने दिया जाए। आजकल के मुतालिक मैं नहीं कह सकता वहाँ के गाँव कैसे हैं। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त वहाँ कोई बड़ा गाँव नहीं होता था। चंद एक मकान एक जगह होते और इससे खासे फासले पर 2-3 और मकान नजर आ जाते थे। ये सब मकान पत्थरों और गारे के बने होते थे। इन्हें गिरा दिया जाता और कभी यूं भी होता कि इन पर तोपों के गोले फायर किए जाते थे। यह एक बुज़दिलाना कार्रवाई होती थी। वियतनाम में अमेरिका ऐसी ही इंतकामी और ताज़ीरी कार्रवाइयां किया करता था। जरा सा शक पर पूरे के पूरे गांव को नजर आतिश कर दिया जाता था। औरतों और बच्चों को नीपाम बमों से जला दिया गया था। जहरीली गैसों तक इस्तेमाल की गई थी। आखिर अमेरिका को शिकस्त खाकर वहां से भागना पड़ा। अंग्रेजों ने बूढ़े औरतों और बच्चों पर तो हाथ नहीं उठाया, लेकिन इनके घर तबाह कर देना, इनकी फसल रोन डालना कुछ कम जुल्म नहीं था। यह ताज़ीरी कार्रवाई 2 महीने और कभी 3 महीने जारी रहती थी। पूरा ब्रिगेड बाहर निकल जाता
اور खाना बदोशी की तरह आज यहाँ कल वहाँ कैंप लगाता, सारे इलाके में घूम फिर जाता था। जिस तरह सर में कंघी फेरी जाती है, लेकिन लड़ने वाला कोई भी एक पठान फौज के हाथ नहीं आता था। लड़ने वाले कबायली यानी जवान और उधेड़ उम्र इस कार्रवाई के दौरान पहाड़ों के अंदर चले जाते थे, लेकिन वो रुपोश होने के लिए नहीं जाते थे बल्कि लड़ने के लिए जाते थे। फौज इन्हीं पहाड़ों के अंदर जाती थी। पठान इन पहाड़ों पर मौजूद होते थे, लेकिन दुबके रहते, और जब फौज पहाड़ियों की खाक छान कर वापस होती थी तो पठान फौज के पिछले हिस्से पर फायरिंग शुरू कर देते थे। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। राजपूताना राइफल्स के ट्रक पर पठानों ने हमला करके इतने ज्यादा जवानों को मार डाला और तमाम राइफलें और एमुनेशन ले गए तो बन्नू के ब्रिगेड को इस इलाके में ताजीरी कार्रवाई का हुक्म मिला। मेरी बटालियन भी इसमें शामिल थी। कार्रवाई आधी रात के वक्त शुरू की गई। लतंबर से बन्नू की तरफ जाओ तो दाएं तरफ बहुत दूर तक रेगिस्तानी मैदान फैला हुआ है, और जहां ये मैदान खत्म होता है वहां से पहाड़ियां शुरू होती हैं। रात को हम इसी मैदान से गुजरे। अभी सुबह तुलू नहीं हुई थी कि हम पहाड़ी इलाके में पहुंच गए और एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। सुबह की रोशनी फूटी तो हम पहाड़ी के ऊपर थे। मैं ये तफसीलात सुनाकर बात को लंबा नहीं करना चाहता कि ताजीरी कार्रवाई किस तरह की गई और कबायलियों ने भी जो कुछ किया था या नहीं। मैं इतना ही बताना काफी समझता हूँ कि ब्रिगेड इन पहाड़ों में दूर तक फैल गया। उस रोज तोपखाने ने भी पहाड़ों पर गोलाबारी की थी। दूर कहीं राइफलों और मशीन गनों से भी फायरिंग होती रही थी। मेरी कंपनी को एक पहाड़ी की चोटी पर पिकेट बनाने का हुक्म मिला था। पिकेट एक आम किस्म का मोर्चा होता था। फौरन पत्थर इकट्ठे करके एक गोल दीवार खड़ी कर दी गई। इसमें 2 सेक्शनों ने रहना था। मैं भी उनमें शामिल था। हम 24 जवान थे और एक हवालदार हमारा कमांडर था। दीवार को हमने पत्थर रख रख कर कमोबेश 5 फीट ऊंचा कर लिया। हमारे साथ 2 खचरे भी थी जिन पर एमुनेशन के बक्स लदे हुए थे। बक्स उतारकर खचरों को भी पिकेट के अंदर कर लिया। हमारे साथ सिग्नल प्लाटून के 2 जवान भी थे। पहाड़ी लड़ाई में, खुसूसन कबायलियों के साथ लड़ाई में, पहाड़ों पर इस किस्म की पलटनें बनाई जाती थी। इनसे नीचे दूर दूर इलाका नजर आता था। दिन गुजर गया। ब्रिगेड पहाड़ी से निकला और दामन में एक विसी मैदान में रुक गया। रात को बगैर खैमों के वहीं कैंप करना था, इसलिए पहाड़ी में हमारी पिकेट जैसी थी 2-4 पिकेटें बना ली गई। ये कैंप की हिफाजत का इंतजाम था। रात खैर से गुजर गई। दूसरे दिन फिर ब्रिगेड पहाड़ों के अंदरूनी इलाके में चला गया और शाम को वापस हुआ। उस रोज भी तोपखाने की गोलाबारी हुई थी। छोटे हथियारों की भी फायरिंग हुई थी। हम पिकेट में रहे। हमें कुछ खबर नहीं थी कि ये गोलाबारी या फायरिंग कहाँ हुई और क्यों हुई थी। हमारी पिकेट की जिम्मेदारी थी। इलाके में कुछ भी नहीं हुआ। हम अलर्ट रहे। शाम को ब्रिगेड फिर कैंप वाली जगह पर आ गया। हमें खच्चर के जरिए खाना ऊपर भेज दिया जाता था। हम खाने के साथ साथ हमारे हवालदार के लिए पैगाम आया कि अलासूद ब्रिगेड वापस जाएगा और हम पिकेट उस वक्त छोड़ेंगे जब ब्रिगेड कम से कम 1 मील दूर निकल गया होगा। इसका मतलब यह था कि पहाड़ियों पर जो 4-5 पिकेटें थी ये ब्रिगेड के रेत की हिफाजत करेंगी। ये ज़हन में रखें कि पहाड़ी इलाके के दामन से रेगिस्तान शुरू हो जाता था जो कमोबेश 2 मील चौड़ा और उससे कुछ ज्यादा लंबा था और ये सड़क तक जाता था। इसके दाईं और बाईं तरफ टेकरियां थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मरी और कश्मीर जैसे सरसब्ज पहाड़ नहीं थे। ना दरख्तों से ढके हुए हैं। ये बिल्कुल नंगे पथरीली जमीन जैसे पहाड़ थे जिस पर घास की एक भी हरी पत्ती नजर नहीं आती थी। ये बहुत बड़ा खतरा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनातुल्लाह की सरगुज़श्त अभी जारी है। वाक़या तकरीर किस्त में। अल्लाह हाफिज़।